Good morning, students. Welcome you all. So, how are you all? Hope you all are very good. So, today I am going to take up a new topic of grammar, that is modals. So, in this particular video, we will see what are modals and what do we mean by it and where do we use this topic or use this modals. Alright, let's start. So, in your previous classes, you all have read about it, modals verb. So, first we just discussed about the verb. What is verb? So, you all know that there are three kinds of verb, that is auxiliary, or you can say the helping verb, and the main verb and the modals verb. ऑलराइट जब हम टेंसेस कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि मोडाल्स वर्ब्स भी होते हैं. सो ऑक्सिलरी वर्ब में इट मीन्स जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसमें हमारा क्या होता है, लाइक इज, एम, आर, वाज, वर. ऑलराइट, हैड, हैव, हैज, डू, डज. इट मीन्स टू बी, टू हैव एंड टू डू की फैमिली. बट मोडाल्स जब हम टेंस में यूज करते हैं तो देर आर टू टाइप्स ऑफ मोडाल्स वी यूज इन टेंस ओनली, दैट इज विल और शेयर. But now in this video we discussed about the modal verbs. Basically modal verbs होते क्या हैं? Alright, so modals are used to indicate modality or mood. अब modality, mood ये क्या होता है? Let's start. See the definition of modal. A modal verb is a type of auxiliary verb that is used to indicate modality, that is likelihood, ability, permission or possibility. So modal verb is a type of auxiliary verbs. You all know कि modal verbs क्या होते हैं? It's a kind of auxiliary verbs, kind of helping verb. Clear? अब क्या होता है कि it is used to indicate modality. So what is the word of modality means? Modality क्या होता है? It's a type of behavior, that is the attitude or the way the writer or the speaker is feeling at a particular time. ऑलराइट, सो अभी क्या होता है कि जो स्पीकर होता है, मीन्स स्पीकर और राइटर कैन एक्सप्रेस सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी, विलिंगनेस, एबिलिटी एक्सेट्रा बाय यूजिंग मोडाल वर्ब. सो मॉडलिटी बेसिकली हम इसे आप कह सकते हैं इट्स अ मूड ऑफ राइटर और अ स्पीकर. ठीक है, मोडालिटी उसी को कहते हैं. तो ये मोडालिटी हम कहें जैसे लाइवलीहुड की मोडालिटी हो गई, एबिलिटी, परमिशन, विलिंगनेस, सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटीज एंड सो मैनी, ये सारी क्या हो गई? मोडालिटी हो गई. क्लियर? सो टू ऑफ माई फ्रेंड्स कैन प्ले गिटार. सो हेयर द वर्ड कैन इज अ मोडाल. ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है? एबिलिटी शो हो रही है किनकी? इसकी, इस गर्ल की, फ्रेंड्स की. नेक्स्ट इज देर आर टू सेंटेंसेज एग्जाम्पल्स. द बॉय कैन प्ले baseball and the next is the boy can play the baseball and the teacher can teach. ठीक है, तो यहाँ पे दोनों की एबिलिटी और कैपेसिटी शो हो रही है. नेक्स्ट इज देयर आर सो मेनी modals. One by one just see. Should, shouldn't, might, may, have to, has to, didn't have to, doesn't, has to. So have to, has to, had to की family. Could, must not और must, can, could. So ये सब क्या होते हैं? हमारे modals होते हैं. Okay, now let's understand कि where do we mean by the modalities और modals basically होते क्या है और modals को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं. So modals are special verb that are different from normal verbs. अब देखो ये क्या है यहाँ पे कि ये डिफरेंट है. किससे? मोडाल्स नॉर्मल वर्ब से डिफरेंट है. क्लियर? बिकॉज नॉर्मल वर्ब्स क्या है हमारे? ऑक्सिलरी वर्ब्स और मेन वर्ब. सो ये दोनों से क्या है? डिफरेंट है. क्लियर? सो दे आर नेवर यूज्ड अलोन, आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ प्रिंसिपल वर्ब. सो क्या होता है? ये लाइन आप थोड़ी से ढंग से देखिएगा. They are never used alone means modals can never used alone. कभी भी आप अकेले modals को यूज नहीं कर सकते. And are always followed by a principal verbs. ये हमेशा किसको फॉलो करते हैं? प्रिंसिपल वर्ब को. So what is principal verb here? See, principal verb is the main verb. आप main verb बोल दो या principal बोल दो, both are same things.
All right, so you can also say the principal verb, it's root form of the verb. All right, so जब भी आप modals का यूज करोगे तो उसमें principal verb का यूज करना essential है. Why it is essential? Because suppose I'll give you an example. मैं यहाँ लिखती हूँ I want to change the. I can see the stars. All right, so I can see the star. So here see is main verb or the principal verb or the root form of the verb. Clear? See, saw, seen. See is the first form of the verb, saw is the second form of the verb, and seen is the third form of the verb. So see is the main verb here. So can is the modal. So with principal verb we always use modal verbs. All right. Suppose I can see the stars. यहाँ लिखा है मैं stars को देख सकता हूँ. अगर मैं यहाँ लिखूँ instead of can, अगर मैं यहाँ पे if I remove the can means if I remove the modals और मैं लिखूँ I see the stars, meaningful sentence है. But अगर मैं यहाँ पे can लिखती हूँ और सी को मैं रिमूव कर देती हूँ तो क्या हो जाएगा I can the stars. क्या समझ में आया? इससे कुछ सेंटेंस बनता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा. आई कैन द स्टार्स नहीं ना. जब तक आप सी का यूज नहीं कर लेते हो तो आपको वहां पे समझ में नहीं आता. क्लियर? सो लाइक यू मे प्ले द क्रिकेट. ऑलराइट, यू प्ले द क्रिकेट इजली अंडरस्टैंडेबल है, बट यू मे द क्रिकेट कुछ समझ में आ रहा है? क्या सेंटेंस बोल रहा है? नहीं ना. तो that's why we always use principal verb with the modals. That is the main reason. Clear? They provide additional information about the principal verb. They are used to express. तो अब principal verb क्या express करते हैं? अगर ये लग जाते हैं तो they express certainty, possibility, willingness, obligation, necessity, and the ability. Okay. So there are some negative forms of modals. इसमें भी एक बार देखें. will, you can write will not or won't, would not or wouldn't, shall not or shan't, should not or shouldn't, may not or may. Clear? Next is might not or mightn't, cannot or can't, could not or couldn't, must not or mustn't, have to, don't have to. Clear? Need not, needn't, ought not to, oughtn't to, dare not, daren't, used to, used not to, didn't, used to. Clear? So the modals are the modified forms of helping verb. That is, they modify the mood of the action verbs. So basically क्या करते हैं? वो modify करते हैं, जो भी action verbs होते हैं उनके mood को modify करते हैं, उन modality use करते हैं. The main modals are as follows. So ये already हम discuss कर चुके हैं. Shall, will, should, would, can, could, may, might, must, ought to, used to, need, has, had, and have to, etc. So these are some modals. Okay, now let us understand what is the features of modals. Modal always express the imaginary actions. So modal हमेशा क्या express करते हैं? Imaginary actions express करते हैं, like ability, power, permission, request, possibility, willingness, certainty, right and wrong, and necessity. So ये कुछ imaginary actions हैं जो क्या यूज करते हैं? मोडाल्स यूज करते हैं. इनका क्या मतलब है, क्या होता है, कैसे कैसे कब कब यूज होगा, लेटर आई एक्सप्लेन यू. ओके, जब हम स्टेप बाय स्टेप इसे अभी करेंगे. तो बस आप अभी इतना समझ लीजिए कि इन सब चीज़ों में यूज होते हैं. एबिलिटी मतलब योग्यता, पा शक्ति, परमिशन आज्ञा लेना, रिक्वेस्ट भी हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, पॉसिबिलिटी संभावना, विलिंगनेस किसी करने की इच्छा, क्या मतलब आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, आपको डिटरमाइंड हो टू डू समथिंग, सर्टेनिटी
किसी चीज़ की होने की संभावना जिसे हम कहते हैं वो अधिक हो जाती है. राइट और रॉन्ग, यू ऑल नो, नेसेसिटी यानी जरूरत. So modals do not come alone, they always take the first form of the verb with them. So ये जस्ट अभी आपको बताया कि ये हमेशा alone आते हैं and always use the first form of the verb. That is, जैसे go, went, gone है तो go को यूज करेंगे, went और gone को यूज नहीं करेंगे. ठीक है. So modals are never affected by a person, number and gender of the subject. Modals कभी भी affected नहीं होते किसी person, number या gender से. Suppose हम अदर वर्ब्स यूज करते हैं, लाइक हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब्स, तो उसमें आपको ही पता होना चाहिए कि पर्सन कौन सा है. ठीक है, थर्ड पर्सन है या फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब्स चेंज, टेंसेस चेंज होते हैं या थिंग्स चेंज होती है. नंबर्स पता होना चाहिए, जेंडर स्पेशली पता होना चाहिए. तो जैसे हम कहते हैं हैज़, हैव, हैड, हैज़ हम सिंगुलर के साथ लगाते हैं, हैव प्लूरल के साथ लगाते हैं. बट विद द मोडाल्स हमें ये चीज़ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है. वी नेवर अफेक्टेड बाय दीज थिंग लाइक पर्सन, नंबर और जेंडर ऑफ द सब्जेक्ट. सो अब यहाँ पे है कि ये क्या एक्सप्रेस करते हैं, पर्टिकुलर मोडाल्स क्या क्या एक्सप्रेस करते हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पे क्लियर किया गया है. सो ओके, सो अभी पर्टिकुलर मोडाल्स जैसे शेल को हम ऑलरेडी टेंस में पढ़ चुके हैं. शेल क्या बताता है? शेल, थ्रेट और प्रॉमिस. थ्रेट मीन्स डराना. सपोज आपके टीचर्स आपसे कहते हैं कई बार कि इफ़ यू डू नॉट कंप्लीट योर होमवर्क आई शेल पनिश यू, यानी अगर तुम अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करोगे तो मैं तुम्हें क्या करूँगी या करूँगा, पनिश करूँगा. प्रॉमिस करते हैं, इफ़ यू डू दिस आई शेल गिव यू अ चॉकलेट. ये क्या हो गया? प्रॉमिस हो गया. डिटरमाइन, डिटर्मिनेशन रहते हैं. ठीक है, डिटरमाइंड होते हैं, दृढ़ निश्चित होते हैं. आई शेल डू दिस, राइट, कमांड देना. ओके, व्हेन यूज्ड विद सेकंड और थर्ड पर्सन, किसके साथ यूज कर रहे हैं? सेकंड और थर्ड पर्सन, दैट इज यू, ही, शी, इट और दे के साथ. बट आप आई और बी के साथ भी इसको यूज कर सकते हो इन सिंपल फ्यूचर टेंस. शुड इज इंडिकेट अस दैट ड्यूटी, obligation, advice, suggestion, request, surprise, purpose, etc. Past form of the shall हम इसे कह सकते हैं. तो should हमको अपनी ड्यूटी बताता है. You should obey your teachers. तुम्हें अपने टीचर्स का कहना मानना चाहिए. तो ये क्या ड्यूटी है. Alright. Obligation बताता है, oblige होने चाहिए आप किस किस चीज़ के लिए. एडवाइस, सो यहाँ पे एक वर्ड है एडवाइस, ADVICE. सो एडवाइस का मतलब आपको पता है क्या होता है? सलाह. बट हियर आर द अनदर वर्ड इज अनदर स्पेलिंग इज एडवाइस, ADVISE. अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि एडवाइस और एडवाइस में डिफरेंस क्या है. तो दोनों को एक ही कनेक्ट कर लेते हैं. एडवाइस भी आप लोग सही मानते हैं, एडवाइस दोनों का मतलब आप सलाह से लेते हो. नो, इट्स रॉन्ग. ADVIC का मतलब होता है सलाह और ADVISE का मतलब होता है टू गिव एडवाइस. तो किसी को एडवाइस देना और सलाह, मतलब किसी को सलाह देना और सलाह दोनों में फर्क है. सो जब आप टू गिव एडवाइस का यूज कर रहे हो तो SE वाला और सिर्फ एडवाइस यानी सिर्फ सलाह लिखना चाह रहे हो तो ADVIC. जैसे हमको यहाँ पे सिर्फ सलाह लिखना था, ठीक है, किसी को एडवाइस नहीं देना था, तो हमने यहाँ पे ADVIC का CE का यूज किया. सजेशन, किसी को सजेशन देना, जैसे यू शुड गो टू द डॉक्टर. रिक्वेस्ट करना, सरप्राइज, पर्पस. सो इन सब चीज़ों में हम शुड का यूज करते हैं. क्लियर. नेक्स्ट इज वुड. सो वुड क्या होता है? पास्ट फॉर्म ऑफ द विल आप कह सकते हो. विल जब आप यूज करते हो कि फ्यूचर में किसी चीज़ को आपको करना है, दैट टाइम आप you used will. जैसे I will go to the market, मैं मार्केट जाऊँगा, फ्यूचर में काम करोगे. सो विलिंगनेस, किसी चीज़ को करने की बहुत ज़्यादा इच्छा, पास्ट हैबिट्स में. जैसे आपने लिखा I would take to her, तो मैं उसे लेके जा सकता, जाऊँगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? एक हैबिट है बट ये सर्टेनिटी नहीं है इसमें. क्लियर. सजेशन, पोलाइट, रिक्वेस्ट, विश और डिजायर और अनरियल कंडीशन के लिए भी आप वुड का यूज करते हो. तो अनरियल कंडीशन क्या होती है कि जो कंडीशन आप इमेजिन कर रहे हो जिसके फुलफिल होने के चांसेस 0% है. लाइक आई से
कि इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं बर्ड होती तो मैं उड़ जाती। सो आई एम नॉट अ बर्ड, अब मैं बर्ड हूँ ही नहीं, तो मैं वो जो सेकेंड एक्शन है वो मेरा फुलफिल कभी होगा ही नहीं, ये अनरियल कंडीशन है, ठीक है। सो इफ आई हैव अ लॉट्स ऑफ मनी आई वुड बाय अंबानीज होम और अंबानीज होटल, तो ये सारी चीज़ें बहुत अनरियल है, अनरियल कंडीशन है, बट इन अनरियल कंडीशन वी कैन यूज वुड। ऑलराइट, कैन होती है एबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी और परमिशन और कैपेसिटी। ऑलराइट, आई कैन राइट one page essay in 2 minutes, राइट। तो कह रहे हैं कि मैं ऐसे क्या है 2 मिनट में 1 पेज ऐसे 2 मिनट में लिख लूँगी, तो कैपेसिटी शो कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आई कैन डांस, आई कैन मूव, आई कैन स्पीक इंग्लिश, सो ये सारी चीज़ें आपकी एबिलिटी वगैरह को शो कर रहे हैं। माइट इट्स अ पास्ट फॉर्म ऑफ मी, पॉसिबिलिटी और पर्पस को डिसाइड करता है। सो पास्ट फॉर्म ऑफ मी आ रहा है। अब यहाँ पे माइट का मतलब होता है अनसर्टेन थिंग्स, या फिर किसी चीज़ के लिए शायद के कंडीशन में, जैसे आई माइट शिफ्ट टू अ न्यू प्लेस, मतलब मैं एक नई प्लेस पे शिफ्ट हो सकता हूँ। सो ये आपने डिसाइड नहीं किया है, मे बी आप हो सकते हो और नहीं भी। मस्ट मीन्स नेसेसिटी, कंपल्शन, ऑब्लाइगेशन, डिटर्मिनेशन, सर्टेनिटी, एम्फेथेटिक, एडवाइस एंड प्रोहिबिशन। सो क्या होता है, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा जरूरत होता है। कंपल्सरी मीन्स आपके टीचर्स आपको कहते हैं यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क इन 2 days, ठीक है, 2 दिनों के अंदर तुम्हें अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। सो ये क्या है, कंपल्शन है, तुम्हें ये काम करना है, राइट। यू मस्ट ओबे द लॉज ऑफ आ कंट्री, हमारी कंट्री का तुम्हें लॉज ओबे करने चाहिए। तो जब मस्ट यूज हो रहा है, चाहिए वर्ड आप शुड लगा सकते हो, बट शुड आप कब लगाओगे, तब आप किसी को अपनी ड्यूटी रियलाइज करवा रहे हो। बट हेयर आप किसी को ड्यूटी रियलाइज नहीं करवा रहे हो, उसको बोल रहे हो दिस इज योर ड्यूटी एंड यू हैव टू डू दिस एनी हाउ इन एनी कंडीशन। क्लियर। एम्फेथेटिक मीन्स एम्फेसाइज करके आपको किसी को बोलना। जैसे आपकी मदर आपको बोलते हैं यू मस्ट हैव योर डिनर और मीन्स लंच, ओके। तो ये क्या होता है, आपकी मदर आपको एम्फेसाइज कर रही है, एम्फेथेटिक कर रही है, जोर देकर बोल रही है तुम्हें ये काम करना है। ऑलराइट। प्रोहिबिशन, अब प्रोहिबिशन मीन्स प्रोहिबिटेड, जैसे आप लिखते हो यू मस्ट नॉट पार्क योर कार हियर, तुम अपनी कार यहाँ पार्क नहीं कर सकते, तो वो प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिट कर रहे हैं हमें कि आप ये काम इधर नहीं कर सकते। क्लियर। नेक्स्ट इज ऑट टू। सो ऑट टू इज द मॉरल ड्यूटी, एक मॉरल ड्यूटी है, ऑब्लाइजेशन है, एडवाइस और स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है। जैसे आपने लिखा आई ऑट टू ब्रिंग ग्रोसरीज डेली, मैं डेली ग्रोसरीज लेकर आता हूँ, तो एक काइंड ऑफ मॉरल ड्यूटी है। यूज टू इट्स अ पास्ट हैबिट, कब यूज करते हैं, रिपीटेडली जो पास्ट हैबिट होती है हमारी, उसके लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। ओके, आई यूज टू ड्रिंक टी डेली। अब मैं क्या करती हूँ, मैं किसकी आदत थी, मेरी डेली चाय पीने की आदत थी, तो ये जो मेरी आदत थी, मेरी पास्ट हैबिट थी, वो मैं किसको यूज करूँगी, यूज टू। नेक्स्ट इज हैज, टू हैव, टू हैड टू, फोर्स्ड एक्शन और अ फ्यूचर और पास्ट। अब कोई फोर्स्ड एक्शन होता है, उसके लिए हम ये यूज करते हैं। सपोज आई से कि आई हैव टू स्टडी रेगुलरली एज आई विल फेल। क्या कह रही हूँ मैं, कि मुझे रेगुलरली पढ़ाई करनी होगी, नहीं तो मैं क्या हो जाऊंगी, फेल हो जाऊंगी। ऑलराइट, सपोज आई रिमूव दिस मॉडल, दैट इज हैव टू, मैं अगर इस सेंटेंस में रिमूव कर दूँ, सो सेंटेंस विल बी आई स्टडी रेगुलरली एज आई विल फेल। मुझे रेगुलर स्टडी करनी है, नहीं तो मैं क्या हो जाऊंगी, फेल हो जाऊंगी। अब फर्स्ट सेंटेंस में क्या था, मुझे करनी पड़ेगी, अदरवाइज आई विल फेल, मुझे करनी है, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगी, दिस इज द सेकंड एक्शन। ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड। सो हियर ये सब एक टेबल है दैट यू कैन राइट इन योर नोटबुक ऑल्सो। सो इस टेबल को आप जस्ट रीड आउट करना है, ठीक है। लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देखना है इसमें किसमें क्या क्या यूज़ हो रहा है,
ऑलराइट, सो ये आपको थ्रू पीडीएफ में भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, बट अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ ये आप अपने नोटबुक्स में कॉपी कर लीजिए. In can we can use ability, doubt, astonishment, permission or polite request. May में हम use करेंगे permission, if not prohibition, supposition with doubt, must, obligation, firm necessity and logical conclusion. Alright, so next is shall, intention or supposition. किसी चीज़ की इंटेंशन क्या है, उसके पीछे विल, विश, डिजायर, विल, कॉन्फिडेंस इन द फ्यूचर. हैव टू, अनविलिंगनेस, फोर्स सर्कमस्टेंसेज, ऑलरेडी बता चुकी हूँ. किसी चीज़ की अनविलिंगनेस हो और फोर्स्ड चीज़ हो, वुड, विश, विथ टू लाइक, पोलाइट रिक्वेस्ट और हैबिट ऑफ द पास्ट, शुड, नेसेसिटी, एडवाइस, ब्लेम, रिकमेंडेशन, रीअप्रोच और रिग्रेट. यूज टू repeated action in the past. Or to moral duty, instead advice, strict recommendation or need में unnecessity. Alright, so with this we come to an end of this topic, that is modals. I hope आप सबको समझ में आया होगा. So in our next video we will see the rules of the modals and the different type of the modals. Okay, so thank you for watching.